میں نے ایک یتیم لڑکی سے شادی کی۔ اس کی ایک 14 سالہ بہن بھی تھی۔ بیوی کے ساتھ اس کی بہن بھی رخصت ہو کر آ گئی تھی، لیکن اس کی بہن سارا دن میری بیوی کے ساتھ چپکی رہتی۔ مجھے اس پر بڑا غصہ آتا کیونکہ وہ رات کو بھی ہمارے کمرے میں ہی سوتی تھی۔ میں نے بیوی پر غصہ کیا اور جب رات اس کی بہن کمرے میں آئی تو زبردستی اسے دوسرے کمرے میں بند کرایا اور پھر کمرے میں واپس لوٹا تو جان نکل گئی۔ میری بیوی کی بہن بڑی عجیب و غریب سی تھی۔ وہ ہر وقت ڈری سہمی سی رہتی تھی اور اپنی بہن کے ساتھ چپکی رہتی۔ مجھے اس پر بہت غصہ آتا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اس سے تو جان چھڑوا کر ہی رہوں گا۔ ایک دن میں نے اپنی بیوی سے چھپ کر اس کی بہن کو ایک تنہا کمرے میں بند کر دیا اور جب وہاں پہنچا تو دھنگ رہ گیا کیونکہ وہاں تو میں شادی کی رات اپنے کمرے میں آیا تو غصہ تھا۔ میں نے منہ دکھائی کا قیمتی تحفہ تو خریدا ہی تھا لیکن ایک پیار بھرا تحفہ بھی لایا تھا۔ میں گجرے خرید لایا تھا کیونکہ جانتا تھا کہ لڑکیاں اس قسم کے تحائف پا کر خوش ہو جاتی ہیں۔ میں جو ہی اپنے کمرے کا دروازہ کھولا تو حیران رہ گیا تھا۔ سامنے کا منظر بڑا ہولناک سا تھا۔ میری بیوی کی 14 سالہ بہن اس کے ساتھ چپک کر بیٹھی تھی اور مسلسل روتی چلی جا رہی تھی۔ یہ رونا کوئی عام والا رونا نہیں تھا، وہ تو باقاعدہ طور پر بین ڈال کر رو رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر میری بیوی پریشان ہو گئی۔ اس نے اپنی بہن کو ڈانٹ کر خاموش کروایا تھا۔ میں آگے بڑھا اور بولا، ایمن کیا ہوا اس بچی کو؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا اس کی؟ ایمن بولی، جی ٹھیک ہے، یہ بس یہ سوچ کر پریشان ہو گئی ہے کہ میں اپنی نئی زندگی شروع کرنے جا رہی ہوں تو اس کا کیا ہوگا۔ میرا دل دکھ گیا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر عائشہ کے سر پر دست شفقت رکھ دیا تھا اور بولا کہ تم پریشان مت ہو، اگر تم ایمن کی بہن ہو تو میری بھی بہن ہو، تم اسی گھر میں رہو گی ہمارے ساتھ۔ ایمن، تم نے یہ بات عائشہ کو نہیں بتائی تھی کیا؟ وہ بولی، عثمان میں اس کو بتا چکی ہوں مگر بچی ہے نا اس لیے یہ باتیں اس کو فی الحال سمجھ نہیں آ رہی، وقت گزرے گا تو خود بخود سمجھ جائے گی۔ میں نے سر ہلا دیا تو میں یہ ڈرتے ڈرتے بولی، عثمان ایک بات کہوں؟ میں مسکرا کر بولا، ایمن تمہیں اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کی بات سن کر میں ایک دم ہی حیران ہو گیا تھا۔ وہ بولی، عثمان عائشہ کو اپنے ساتھ سلا لوں جب تک یہ سنبھل نہیں جاتی، یہ میرے ساتھ ہو جایا کرے، یہ اماں ابا کی وفات کے بعد بڑی حساس ہو گئی ہے، ذرا ذرا سی بات کی ٹینشن لے کر بیمار پڑ جاتی ہے، میری ابھی نئی نئی شادی ہے، میں کہاں ہسپتالوں کے چکر کھاتی رہوں گی۔ میں ایمن کی بات سمجھ گیا تھا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے ایمن، تم دونوں بہنیں اس کمرے میں سو جاؤ، میں دوسرے کمرے میں چلا جاتا ہوں۔ ایمن اٹھ کر میرے پاس آئی اور بولی، میں ہمیشہ آپ کی احسان مند رہوں گی، آپ نے میرے ساتھ بہت بڑی نیکی کی ہے، میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ گھر میں کسی کو بھی علم نہ ہونے دیجیے گا کہ آپ دوسرے کمرے میں سو رہے ہیں، آپ فکر نہ کریں، جلدی ہی اس گھر سے مانوس ہو جائے گی تو اپنی ضد چھوڑ دے گی۔ میں مسکرا کر بولا، ایمن تمہیں تمہید باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہاری حالت سمجھتا ہوں، ویسے بھی کل تک مہمان واپس لوٹ جائیں گے، پھر ہم تینوں ہی تو اس گھر میں رہ جائیں گے۔ اتنا کہہ کر میں ڈری سہمی سی عائشہ پر نظر ڈال کر باہر نکل گیا تھا۔ میں ایمن کو تسلی تو دے آیا تھا مگر خود کو تسلی کیسے دیتا؟ میرے ذہن میں بار بار یہی آ رہا تھا کہ کیا عائشہ یوں ہی ہمیشہ میری خوشیوں کے درمیان حائل رہے گی؟ میں نے نیکی کر کے اپنا ہی نقصان تو نہیں کر ڈالا، مگر میں نے بڑی کوششوں سے اپنے ذہن سے تمام منفی خیالات کو جھٹک دیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ بچے ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ گوارا نہیں کرتے کہ ان سے مانوس شخص کسی اور کے ساتھ بات بھی کرے، اس لیے میں عائشہ کا بھرپور خیال رکھنے لگا تھا۔ وہ بڑی معصوم سی ڈری سہمی سی لڑکی تھی، اس قسم کے بچوں پر تو ویسے بھی مجھے بڑا ترس آتا تھا۔ میں یہی سوچ کر پریشان ہو جاتا تھا کہ نہ جانے اس نے اپنی گزشتہ زندگی میں کیا کچھ سہا ہے جو وہ ایسی ہو گئی ہے۔ عائشہ کے مقابلے میں ایمن کی شخصیت بڑی جاندار سی تھی، وہ اعتماد سے بھرپور تھی، زندگی کے اتار چڑھاؤ کا مسکرا کر مقابلہ کرتی تھی۔ ہماری شادی کو پورا ایک ہفتہ ہو گیا تھا مگر ایمن ابھی بھی عائشہ کے ساتھ ہی سوتی تھی جبکہ میں دوسرے کمرے میں پڑا رہتا تھا۔ میں کچھ دن ٹھہر کر عائشہ کے لیے ایک بستہ لے آیا تھا، کتابیں تو لایا نہیں کیونکہ مجھے علم نہیں تھا کہ وہ کس کلاس کی طالبہ ہے۔ میں گھر پہنچا تو ایمن گھر کے کام کاج میں مصروف تھی جبکہ عائشہ چارپائی پر بیٹھ کر اپنی بہن کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے باواز بلند سلام کیا اور چہرے پر مسکراہٹ سجا کر عائشہ کے پاس پڑی کرسی پر جا کر بیٹھ گیا۔ ایمن کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ بھاگ کر میرے پاس آ کر کھڑی ہو گئی، اس کے چہرے پر اس طرح پھیلا ہوا تھا۔ میں نے اسے نظر انداز کیا اور عائشہ سے مخاطب ہوا اور بولا، عائشہ دیکھو میں تمہارے لیے تحفہ لے کر آیا ہوں۔ عائشہ مجھے دیکھ کر رونے لگی اور بھاگ کر اپنی بہن کے پیچھے جا کر چھپ گئی۔ میں حیران تھا کہ آخر وہ ایسا کیوں کرتی ہے، وہ ہر دم خود کو یوں چھپا کر کیوں رکھتی ہے، مگر میں یہ نہیں جانتا تھا کہ جب مجھے اس سوالات کے جوابات ملیں گے تو مجھے خود کتنا بڑا دھچکا لگے گا، میری ساری شخصیت ہل کر رہ جائے گی۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور بولا، عائشہ بیٹی ادھر آؤ، میری بات سنو، میں تمہارے لیے تحفہ لایا ہوں۔ میری بات سن کر عائشہ کی بین بلند ہونے لگی۔ میں نے سوالی نظروں سے ایمن کی جانب دیکھا تو مجھے بڑے غصے میں لگی تھی۔ وہ بولی، عثمان آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، آپ میری بہن سے دور رہیں، آپ میرے شوہر ہیں مگر عائشہ کے لیے تو غیر محرم ہے، اس لیے آپ اسے مخاطب نہ کیا کریں۔ مجھے ایمن کی بات بہت بری لگی تھی، میں تو عائشہ کو اپنی چھوٹی بہن سمجھنے لگا تھا مگر ایمن کا رویہ بڑا پریشان کن تھا، مجھے بھی غصہ آ گیا۔ میں بولا، ایمن اگر محرم اور نامحرم کا تمہیں اتنا ہی خیال ہے تو اپنی بہن کو ایک نامحرم کے گھر اپنے ساتھ لائے ہی کیوں ہو؟ اتنا کہہ کر میں دروازہ زور سے بند کر کے گھر سے باہر چلا گیا تھا۔ باہر نکل کر میں سڑکوں کی خاک چھانتا رہا، مجھے رہ رہ کر اپنے سخت رویے پر شرمندگی ہو رہی تھی۔ عائشہ مجھ پر زبردستی تو مسلط نہیں کی گئی تھی جو میں یوں ایمن کو
ताने देने लगा था। वो तो मेरी मुकम्मल रजामंदी से मेरे घर आई थी। घर में हम फकत 3 लोग ही तो थे। इससे कबल मेरे घर पर खामोशी और सन्नाटों का राज था। मेरी वालिदा का इंतकाल 2 वर्ष पहले हुआ था। इनके गुजर जाने के बाद जिंदगी ने मुझे कड़ी धूप में ला खड़ा किया था। घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर थी। मैं कमा रहा था और घर में अकेला रहता था, इसलिए कोई काम वाली भी मेरे घर काम करने की हामी नहीं भरती थी। अब एक दोस्त ने शादी का मशवरा दिया तो मैंने अपने रिश्ते की जिम्मेदारी इसी पर डाल दी थी। मेरे दोस्त ने ही मुझे बताया था कि इनके जानने वालों में एक यतीम लड़की है जो दहेज में सिर्फ सवाब लाएगी। मैं हैरान हो गया और बोला, किस किस्म का सवाब? इसने बताया एमन की एक 14 साल बहन इसी के साथ रुखसत होकर घर आएगी। तुम इसकी पढ़ाई लिखाई खाने पीने पर जितना भी पैसा लगाओगे वो तुम्हें सवाब की सूरत में अगले जहां में मिलेगा। फिर लड़कियों को जवान होते हुए देर ही कितनी लगती है, इसकी शादी करके रुखसत कर देना। मैंने खुले दिल के साथ हामी भर ली थी, क्योंकि मैं अल्लाह के फजल से इतना कमा लेता था कि बासानी इसका खर्चा बर्दाश्त कर सकता था। मगर मैं कहाँ जानता था कि आयशा तो अजीब ही किस्म की बच्ची होगी। वो मेरे गले की हड्डी बन जाएगी जो मुझसे ना उगली जा सकेगी और ना ही निगली जा सकेगी। लेकिन मैंने ये फैसला किया था कि मैं चंद रोज मजीद सब्र से काम लेकर देखता हूँ कि आयशा का रवैया ठीक होता है या नहीं, फिर ही मैं किसी किस्म के नतीजे पर पहुंचूंगा। मैं रात गए घर लौटने लगा तो होटल से खाना भी ले गया था। मैं जानता था कि एमन मुझसे सख्त खफा होगी। मैं इसकी नाराजगी दूर करना चाहता था। मैं घर के दरवाजे पर खड़ा था जब मेरे कानों में आयशा की आवाज गूंजी थी। वो कह रही थी, एमन क्या अब तुम्हें तलाक हो जाएगी तो मेरे साथ वापस चली जाओगी जहां सिर्फ तुम और मैं रहेंगे? किसी तीसरे का वजूद बर्दाश्त ही नहीं करना पड़ेगा। एमन एकदम गुस्से से बोली थी, अपनी बकवास बंद करो आयशा। आयशा की हंसी की आवाज आई थी। फिर वो बोली, अब तो घर में तुम्हारा खड़ूस शोर नहीं है, अब तो मुझे मेरे हकीकी नाम से पुकारो। मैं आयशा की बात सुनकर हैरान रह गया था। आयशा का कोई और नाम भी था जो मुझसे छुपाया गया था, लेकिन क्यों? मेरे दिमाग में इतने क्यों जमा हो गए थे कि अब मुझे घुटन होने लगी थी। मैंने दरवाजा खोला और घर में दाखिल हो गया। एमन की नजर मुझ पर पड़ी तो वो भागकर मेरे पास आई और बोली, उस्मान आप कहाँ रह गए थे? मैं आपकी फिक्र में घुलती जा रही थी। मैं ये देखकर खुश हो गया था कि एमन के चेहरे पर नाराजगी का नामो निशान नहीं था। हम दोनों बातें कर रहे थे कि आयशा एक बार फिर से रोने लगी थी। वो बोली, एमन तुम इसके साथ बात मत करो, ये मुझे गुस्से से देखता है। तुम्हारा शोहर गंदा है। एमन ने मुझे शक की नजरों से देखा था। मैंने अपनी सफाई दी और कहा, क्यों आयशा बच्चे, मैं क्यों आपको घूरने लगा? एमन बोली, उस्मान मैंने कहा भी था कि आप मेरी बहन को मुखातिब मत किया करें। इतना कहकर वो आयशा को हाथ से पकड़कर कमरे में ले गई और मैं सहन में अपना समूह लेकर खड़ा रह गया था। लेकिन अब मेरे 14 तबक रोशन हो चुके थे। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर थी। मैं तो इस सबको आयशा को बचपन समझे बैठा था, मगर यहाँ तो किस्सा ही कुछ और था। मेरे दिल में शक कभी उठ चुका था और मैंने सोच लिया था कि एमन पर सख्ती करूंगा तो वो खुद ही अब राज खोल देगी। सुबह एमन मामूल के मुताबिक नाश्ता बना रही जब अचानक रुक कर बोली, उस्मान आप आयशा के लिए स्कूल का बस्ता क्यों लेकर आए हैं? मैं एमन के कल वाले रवैये की वजह से गमज़दा सा था, इसलिए मुतसिर जवाब दिया और कहा, मैं चाहता था कि आयशा अपनी तालीम जारी रखे। एमन हंसी और बोली, कौन सी तालीम? आयशा ने तो स्कूल का मुंह भी नहीं देखा। इसे तालीम का शौक नहीं था, इसलिए हमने इसे स्कूल में दाखिल ही नहीं करवाया था। मुझे एमन की बात अच्छी नहीं लगी, मगर चूंकि मेरा मूड पहले से ही बहुत खराब था, इसलिए मैं किसी किस्म के बहस मुबाहसा में नहीं पढ़ना चाहता था। मैंने अपना खाना खत्म किया और ऑफिस के लिए निकल गया, मगर आयशा का वजूद मुझे खटक रहा था। इसकी अजीबोगरीब हरकतें, मुझे देखते ही रोने लगी, फिर मेरी और एमन की तलाक पर खुश होना, ये सब क्या था? आयशा कोई नन्ही बच्ची तो थी नहीं, वो पूरे 14 साल की थी। इस उम्र में तो लड़कियां बड़ी समझदार और सुलझी हुई होती हैं। यकीनन यहाँ मामला इतना सीधा नहीं था जितना मुझे लग रहा था। शाम में भी आयशा ने मुझे जिद करने की पूरी तैयारी कर रखी थी। मुझे देखकर वो अजीब अजीब हरकतें करने लगी थी। मैं एमन से बात करने लगा तो वो इसको हाथ से पकड़कर कमरे में ले गई। एमन थोड़ी देर बाद कमरे से निकलकर बोली, उस्मान आप खाना खाकर अपने कमरे में चले जाएं तो हम दोनों बहनें भी आकर खाना खा लेंगी। आयशा जिद कर रही है कि जब तक आप बाहर बैठे हैं तब तक वो बाहर नहीं आएगी, तब तक वो बाहर नहीं निकलेगी। मुझे गुस्सा तो बहुत आया था, मगर खुद पर काबू डालकर बोला, ठीक है आयशा बाद में खाना खा लेगी, कम से कम तुम तो मेरे साथ आकर बैठो, तुम तो मेरे साथ खाना खाओ। एमन के जवाब ने मेरे अंदर आग लगा दी थी। वो बोली, उस्मान आपको तो पता है कि आयशा कितनी जिद्दी है, घर में तूफान खड़ा कर देगी, इसलिए आप मेरी माजरत कबूल कर ले। एमन इतना कहकर कमरे में चली गई थी। अब मैं अपने आपे से बाहर हो गया था। मैं खुद पर काबू ना पा सका और कमरे की तरफ बढ़ा। एमन की आवाज आ रही थी, वो आयशा को डांट रही थी, कह रही थी, आयशा काश अम्मी अब्बू के साथ तुम भी मर जाती, कम से कम मेरी जिंदगी तो जहन्नुम ना बनती, ना जाने तुम मेरी किस गुनाह की सजा हो। मैं दरवाजा खोलकर अंदर चला गया था और आयशा को कलाई से पकड़कर खींचता हुआ बाहर ले आया था। एमन बौखला गई थी, वो मेरे पीछे भागी थी और बोली, उस्मान ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़े मेरी बहन को, आप अपने होश में तो हैं। मगर सच्ची बात तो ये थी कि मैं हरगिज अपने होश में ना था। अगर होश में होता तो ये सब करता। मैंने आयशा को एक अलग कमरे में बंद कर दिया था और एमन का हाथ पकड़कर इसे अपने कमरे में ले आया था। मैं बोला, अब मुझे सच सच बता दो कि तुम्हारी बहन ये सब क्यों करती है? एमन का चेहरा जर्द पड़ चुका था, वो मुसलसल रोती चली जा रही थी। वो बोली, आपको अल्लाह का वास्ता है उस्मान, मेरी बहन को छोड़ दें, वो बहुत हसास है, वो डर से मर
जाएगी, वो एक रात तो क्या एक लम्हा भी मेरे बगैर नहीं गुजार सकती। मैं चिल्लाकर बोला, क्यों? आजकल की तो छोटे छोटे बच्चे भी अपने माँ के बगैर रह लेते हैं। ये किसी किस्म का बहन चारा है कि तुम्हारी बहन तुम्हारा साया ही बन गई है। मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ना ही मैं ये सब बर्दाश्त करूंगा। मैंने एमन को घूर कर देखा और कहा, तुम अपना ये रोना धोना बंद करो। मगर इसके रोने में और तेजी आने लगी थी। मैं एमन के कमरे से बाहर आ गई और बाहर से कुंडी लगाकर अपने कमरे में आकर मैंने दरवाजा बंद कर लिया था ताकि एमन और आयशा का शोर थम जाए। मगर वो दोनों बहनें इस जोर से दरवाजा पीट रही थी कि ऐसा लगता था कि वो दरवाजा ही तोड़ देंगी। कई घंटे ये सब कुछ चलता रहा, मगर फिर फजर की अजान होने से कुछ देर कबल दोनों कमरों में खामोशी छा गई थी। मैं अपने दिल के हाथों मजबूर होकर उठ खड़ा हुआ और आयशा के कमरे की जानिब कदम बढ़ा दिए। मैं इससे माफी मांगकर एमन के पास ले जाना चाहता था, मगर मैंने जैसे ही दरवाजा खोला मेरे कदम जंजीर हो गए, क्योंकि वहां तो एक लड़का बैठा था। मैं आगे बढ़ा तो मुझे देखकर सहम गया और फिर से रोने लगा था। मैंने इसे झड़क दी और बोला, मेरे सामने अब आंसू मत बहाना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे बताओ तुम कौन हो? आयशा कहाँ गई? वो लड़का रोते हुए बोला, अगर मैं अपनी हकीकत बता दूंगा तो तुम मुझे बेच तो नहीं दोगे? मैं इसकी बात सुनकर हैरान हो गया तो मैं बोला, नहीं हरगिज नहीं, मैं तुम्हें क्यों बेचने लगा? वो लड़का मेरी बात से मुतमईन हो गया और सोफे पर बैठ गया। इसके चेहरे पर बड़ा कर्ब था। वो बोला, जब मैं पैदा हुआ तो हमारे घर यूं शोक मनाया गया था जैसे मैं पैदा नहीं हुआ, फौत हुआ हूँ। मैं जब बड़ा हुआ तो अपने इर्द गिर्द बड़ा जुल्म देखा था। मेरे अब्बा अम्मी को एक बहुत मोटे डंडे से मार मार कर नीलो नील कर देता था और मेरी तरफ इशारा करके कहता था, मेरे लिए ये तो काबिल कबूल होता कि तू बांझ होती, मगर ये तूने क्या गजब कर दिया। मैं अब्बा की फिटकार सुनकर आईने के सामने जाकर खड़ा हो जाता तो एमन कहती, अब्बा की बातों पर ध्यान ना दिया करो, तू तो बहुत प्यारा है। लेकिन मैं प्यारा होता तो क्या मेरी वजह से माँ को मार पड़ती? मैं एमन से पैसे मांगता तो वो 2 रुपए का नोट थमा देती थी। मैं भागकर दुकान पर जाता और अम्मी के लिए अपनी पसंद की टॉफी ले आता। मैं वो टॉफी अम्मी के मुंह में डालकर कहता, अम्मी गोली खा लो, आराम आ जाएगा। अम्मी मुझसे लिपट कर फूट फूट कर रोने लगती थी। मैं नन्हा सा था, मेरी हम उम्र लड़के खेला करते थे, जबकि मेरा खेल में दिल नहीं लगता था। मैं सारा सारा दिन घर में रहकर अम्मी का पहरा दिया करता था कि अब्बा कहीं अम्मी को फिर से ना मारने लगे। लेकिन मेरे रोकने के बावजूद हर दूसरे तीसरे रोज अम्मी नीलो नील हुई होती थी। मैं अपने छोटे छोटे हाथों से अम्मी को दबाता था कि इन्हें आराम आ जाए, मगर वो अपना दर्द भूलकर मेरे छोटे से हाथों को लबों से लगाकर चूमती जाती और रोती जाती। अम्मी कहती थी कि मुझे मार से तकलीफ नहीं होती, मुझे तुम्हारी इन हरकतों से बड़ी तकलीफ होती है। मेरा जिगर छलनी छलनी हो जाता है। अम्मी की कमेटी निकली तो वो बाजार जाकर मेरे लिए एक साइकिल और गेंद बल्ला ले आई थी। अम्मी कहती थी कि तुम बाहर जाकर तो खेलते नहीं हो, घर में ही तुम्हारी खुशी का इंतजाम कर देती हूँ। मैं साइकिल देखकर बड़ा खुश हुआ था। मैं अम्मी के हाथ चूमता रहता था, फिर सारा दिन कड़ी धूप में साइकिल चलाता रहता था। अम्मी मुझे देखकर हंसकर बोली, आज पहला दिन है इसलिए धूप में खेल लो, कल से नहीं खेलने दूंगी धूप में। मैं हर थोड़ी देर बाद साइकिल से उतरकर गीले कपड़ों से इसे साफ भी करता रहता था कि कहीं मैला ना हो जाए मेरा नया साइकिल, कहीं पुराना ना हो जाए। शाम में अब्बा घर आए तो मैं साइकिल पर झूले ले रहा था। अब्बा बोले, इस कमबख्त को इस साइकिल किसने दिलाया है? फिर मेरे मुंह पर 2 थप्पड़ मारकर मुझे साइकिल से उतार दिया और कुल्हाड़ी के वार करके इस साइकिल को तोड़कर फेंक दिया था। मेरी आंखों से आंसू निकलते रहे थे। मैंने रात का खाना भी नहीं खाया था। अम्मी रात को मेरे पास आकर बैठ गई, बोली, चंदा मैं आज तुमसे एक जरूरी बात करना चाहती हूँ। तुम 8 साल के हो गए हो, एक समझदार बच्चे बन गए हो, अब तो माँ हर बात कर सकती है। तो मैंने इस बात में सर हिला दिया। अम्मी बोली, बेटा तुम्हारी आपी का नाम क्या है? मैं बोला, एमन। अम्मी बोली, और तुम्हारा नाम क्या है? मैं खामोश हो गया। कानों में साइन साइन होने लगी। मैं बोला, अम्मी अब्बा मुझे कमबख्त कहते हैं और तू चंदा कहती है, इन दोनों में से मेरा क्या नाम है? अम्मी की आंखें हरदम छलकने को तैयार रहती थी। आज भी पानी बरसने लगा था। अम्मी बोली, तुम्हारा कोई नाम नहीं है मेरी जान। 8 वर्ष हो गए हैं तेरी पैदाइश को, मगर मैं अब तक यही फैसला नहीं कर पाई कि तुम्हारा नाम क्या रखूं, लड़कियों वाला नाम रखूं या लड़कों वाला। मैं माथे पर बल डालकर बोला, क्यों अम्मी, लड़कियों वाला नाम क्यों रखना है मेरा? मैं तो लड़का हूं ना। अम्मी ने नफी में सर हिला दिया तो मैं हैरान हो गया था। अम्मी बोली, तू ना लड़का है और ना ही लड़की है, तू ख्वाजा सरा है, तीसरी जिन्स है तेरी। मैं 8 साल का बच्चा इन बातों को ना समझ पाता था। अम्मी बोली, मगर मैं तुझे लड़का नहीं बनाऊंगी, क्योंकि तू बाहर निकलेगा तो लोग 100 तरह की बातें बनाएंगे। मैं तुम्हारा नाम आयशा रखती हूँ। तुम हर वक्त सर पर दुपट्टा लेकर रखोगी और घर की 4 दीवारी में रहोगी तो महफूज रहोगी। मैं अम्मी से रूठ गया और बोला, मुझे नहीं लेना दुपट्टा, मैं लड़का हूँ। अम्मी बोली, मेरे पास मोहलत नहीं है मेरे बेटे, नहीं तो मैं तेरे सर पर घने दरख्त की छांव कर देती, तेरे हिस्से का हर दर्द मैं खुद पर झेल लेती। लेकिन अब मुझे कहीं जाना है। मैं रोते हुए अम्मी से लिपट गया और जिद करने लगा कि मुझे भी अपने साथ लेकर जाना। हम दोनों रोते रहे। फिर मैं सो गया तो अम्मी मुझे एमन के पास लिटाकर चली गई। सुबह मेरी आंख चीखों पुकार के साथ खुली थी। एमन रो रही थी। मैं भागकर बाहर निकला तो अम्मी सोई हुई थी। एमन मुझसे लिपट कर रोने लगी और बोली, अम्मी चली गई। मैंने एमन के सर पर चपत मारी और बोला, आहिस्ता बोलो, अम्मी सो रही हैं, उठ जाएंगी।
फिर ऐमन मुझे कमरे में ले गई और मेरे सर पर दुपट्टा डालकर बोली, आज से तू आयशा है। अम्मी की बात याद है ना? मैंने सर हिला दिया। मैं 2 रुपए लेकर दुकान पर गया और अम्मी की टॉफी ले आया। मैं टॉफी जेब में लेकर घूमता रहा, मगर अम्मी उठती ही नहीं थी। सारे मोहल्ले की औरतें भी आ गई थी। फिर अम्मी को सफेद लिबास पहना दिया गया और चारपाई पर डालकर ले गए। मैं पीछे भागा और बोला कि मेरी अम्मी को कहाँ लेकर जा रहे हो? छोड़ दो, मैंने तो इनके लिए टॉफी ले रखी है। मैं छोटा था इसलिए किसी ने मेरी आवाज ना सुनी। मैं आदमियों की टांगे पकड़ पकड़ कर बोलता रहा कि अम्मा को नीचे उतार दो, सुबह से कुछ नहीं खाया, इन्हें भूख लगी हुई होगी। वो टॉफी मेरी जेब में ही रह गई, मगर अम्मी ना लौटी। मैं रोता रहा, तड़पता रहा, मगर किसी ने मेरी ना सुनी। फिर एक दिन अब्बा भी चले गए तो हम चच्ची के घर आ गए। चच्ची भी अब्बा जैसी ही जालिम थी, बड़ा मारती थी मुझे। अक्सर कहा करती थी, मैं तुझे बेच दूंगी, गुरु ले जाएगा तुझे। तभी ऐमन मेरा सहारा बनती थी। चाची का बेटा था, वो मुझे कहता था कि तुम खुश रहो, नाच कर दिखाओ। फिर असद चाची बड़ा हंसते थे, मैं डर जाती थी। ऐमन मुझे बचाती थी। फिर इसकी शादी हो गई आपके साथ। आपकी तरफ देखकर भी मुझे डर लगता कि कहीं आप मुझे गुरु के पास ना भेज दो। ऐमन कहती थी कि आप अच्छे हैं, आप ऐसा नहीं करेंगे, मगर डर मेरे दिल के अंदर जड़ पकड़े बैठा था। अब आपको सब कुछ मालूम हो गया है, अब बताएं मुझे अकेले कमरे में तो बंद नहीं करेंगे ना? मेरा चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। मैं जल्दी से उठकर बाहर की जानिब भाग और ऐमन के कमरे का दरवाजा खोल दिया। इसके कदमों में बैठकर माफी मांगने लगा था। वो भी रो रही थी, मगर बोली, माफी किस बात की? आपने तो हम बेसहारों को सहारा दिया है। फिर मैं और ऐमन आयशा को नफ्सियाती डॉक्टर के पास लेकर जाने लगे थे। इसके दिमाग से बचपन का ड्रामा निकालना बड़ा कठिन था। मैंने इसकी तालीम भी शुरू करवा दी थी। मैं और ऐमन खुशगवार जिंदगी का आगाज कर चुके हैं। आयशा भी जिंदगी की जानिब लौट रही है और मैंने खुद से अहद किया है कि इसका मुस्तकबिल रोशन बनाकर ही मैं दम लूंगा। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। शुक्रिया।